Hello everyone, my name is Prashant Ponekar. In today's lesson, I am going to describe the uses of subject pronouns and object pronouns in detail and explain you in both languages Hindi and English in order to you will be able to understand easily. I request to all my dear subscribers watch this video till end. Moreover, I am going to give you some exercises at end for practice. So let's get started. At first, I would like to introduce you with some of the subject pronouns and their object pronouns. Then we will continue learning uses of object pronouns. There are some subject pronouns on the screen. I, we, they, you, he, she and it. First subject pronoun is I, which we call in Hindi मैं. We use I for giving information about yourself. Next subject pronoun is we, which we call in Hindi हम. We use we when there is a group of people and you are included. There should be more than one person. In such condition, we have to use we. Next subject pronoun is they, which we call it we in Hindi. We use they when there is a group of people and you are not included. There should be more than one person. In such condition, we use they. Then comes you, which we call aap. It is used for who is in front of you or you are talking to. Later comes he, we call it in Hindi वह. It is used for male category when you are already known about him or his name. In such cases, we can use it without using their name. Later comes she, we call it in Hindi वह. It is used for female category when you are already known about her or her name. In such cases, we can use it without using their name. Now comes it, which we use for place, animal, things and situation. Now let's see their object pronouns. The object pronoun of I is me. It is called in Hindi मुझे. Let's see next. The object pronoun of we is us. It is called in Hindi हमें. Next, the object pronoun of they is them. It is called in Hindi हमें. Next object pronoun of you will be the same you. It is called in Hindi आपको. Next, the object pronoun of he is him. It is called in Hindi उसे and it is used for male. Next, the object pronoun of she is her. It is called in Hindi उसे and it is used for female. Next, the object pronoun of it will be the same it. It is used for showing the concern of things, animals or place. Now we are going to see examples of both subject pronouns and object pronouns in Hindi and English both languages. First example of I as a use of subject pronoun और सेंटेंस है मैं आपको पूछता हूँ. मैं आपको पूछता हूँ. इस सेंटेंस में मैं यह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह सेंटेंस है. अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानें, तो अब बहुत आसान है. जैसे कि वाक्य के अंत में यदि ताहू, ते है, ती है इस प्रकार से हिंदी के वाक्य में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जिसमें आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और पूछना इसे हम अंग्रेजी में आस्क कहते हैं और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बनेगा आई आस्क और आपको यह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के पोजीशन पे आया है. यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम है इसलिए यू ही आएगा. इस तरह से पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में होगा आई आस्क यू. आई आस्क यू. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ वी एज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन और सेंटेंस है हमने उसे आमंत्रित किया. हमने उसे आमंत्रित किया. इस सेंटेंस में हमने यह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है. अब सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में खाया, लिया, सोचा, मिला, दी, ली इस प्रकार से हिंदी के वाक्य में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है. और पास्ट टेंस में होने की वजह से वी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और आमंत्रित करना इसे हम अंग्रेजी में इनवाइट कहते हैं और इसका सेकंड फॉर्म इनवाइटेड होता है. और अब है उसे. यह एक पुरुष भी हो सकता है या कोई महिला भी हो सकती है. हम पुरुष समझकर चलते हैं और पुरुष के लिए हम सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे. इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बनेगा वी इनवाइटेड हिम.
We invited him. Third example of they as a use of subject pronoun. और सेंटेंस है वे हमें बुलाएंगे। इस सेंटेंस में वे यह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और इसे हम अंग्रेजी में दे कहते हैं। सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में करेंगे, खाएगा, सोचेगा, लाएगा, पूछेगी, इस प्रकार से हिंदी के वाक्य में आता हो तो आपको यह समझना है कि यह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में होने की वजह से इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और बुलाना जिसे हम अंग्रेजी में कॉल कहते हैं और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें यह वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जिसे हम अंग्रेजी में अस कहते हैं। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा दे विल कॉल अस, दे विल कॉल अस। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ यू एज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सेंटेंस है आप मुझे पूछ रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो। इस सेंटेंस में आप यह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और आप इसे हम अंग्रेजी में यू कहते हैं और यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में कर रहा हूँ, कर रहे हैं या कर रही है इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होने की वजह से हम इस टेंस में 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई के साथ एम, वी दे यू के साथ आर और ही शी इट के साथ इज। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आईएनजी से जानते हैं, पर हमें यहाँ यू इस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और पूछना इसे हम अंग्रेजी में आस्क कहते हैं और इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आस्किंग होगा। और मुझे यह आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और मुझे का अंग्रेजी में होगा मी। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा यू आर आस्किंग मी, यू आर आस्किंग मी। फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ ही एज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सेंटेंस है वह उसे कुछ भेज रहा था। इस सेंटेंस में वह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और वह इसे हम अंग्रेजी में ही कहते हैं और यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में कर रहा था, कर रहे थे या कर रही थी इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होने की वजह से हम इस टेंस में 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, ही, शी और इट इनके साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं और वी, दे, यू के साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम वर भी कहते हैं। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आईएनजी से जानते हैं, पर यहाँ ही इस सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और भेजना इसे हम अंग्रेजी में सेंड कहते हैं और इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेंडिंग होगा। और अब है उसे, यह एक पुरुष भी हो सकता है या कोई महिला भी हो सकती है, पर हम महिला समझकर चलते हैं और महिला के लिए हम सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हर, इसलिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ मतलब होगा अंग्रेजी में समथिंग। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा ही इज सेंडिंग हर समथिंग, ही इज सेंडिंग हर समथिंग। सिक्स्थ एग्जाम्पल ऑफ शी एज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सेंटेंस है उसने उन्हें पढ़ाया है। इस सेंटेंस में वह एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और वह इसे हम अंग्रेजी में शी कहते हैं और यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में किया है, दिया है, लिया है, पूछा है इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने की वजह से हम इस टेंस में 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, वी, दे, यू के साथ हैव और ही, शी, इट के साथ हैज़। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल नाम से जानते हैं, पर हमें
यहाँ शी इस सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हैज़ इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और पढ़ाना इसे हम अंग्रेजी में टीच कहते हैं और इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट होगा। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा शी हैज़ टॉट देम, शी हैज़ टॉट देम। सेवंथ एग्जाम्पल ऑफ इट एज अ यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन, और सेंटेंस है उसने मुझे काटा था, उसने मुझे काटा था। इस सेंटेंस में उसने एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और यह किसी प्राणी के लिए इस्तेमाल किया गया है और प्राणी ईट में आते हैं। उसने का ईट होगा और यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानें? यदि सेंटेंस के अंत में किया था, दिया था, लिया था, पूछा था इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता हो तो आपको समझना है यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में होने की वजह से हम इस टेंस में हैड इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल नाम से भी जानते हैं। और काटना इसे हम अंग्रेजी में बाइट कहते हैं और इसका थर्ड फॉर्म बिटन होगा। और मुझे जिसे हम अंग्रेजी में मी कहते हैं जो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस होगा इट हैड बिटन मी, इट हैड बिटन मी। इस प्रकार से हमने इस लेसन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का इस्तेमाल ग्रामर के साथ सीख चुके हैं। और अब आपके लिए कुछ सेंटेंस है जिसे आपको उचित सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और साथ ही साथ टेंस का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। और पहला सेंटेंस है मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमने उसे सलाह दी। तीसरा सेंटेंस है आप हमारे साथ गपशप करोगे। चौथा सेंटेंस है वे मुझसे शिकायत करेंगे। पांचवा सेंटेंस है वह आपको धोखा दे रहा था। छठवां सेंटेंस है उसने उसे फेंका है। सातवां सेंटेंस है आपका टॉमी कल मुझ पर भौंका था। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।